Okay, good. So everyone, write your attendance in the chat box. Remaining students, write your attendance first. Okay. So I think we have completed the last chapter, that is reflection of light. Is it? Now we are going to start a new fresh chapter today, that is study of sound. I think you might have studied about the sound in the previous standards. Okay, so we are going to take that further. We are going to understand sound in more details in this standard. Okay, so how the first question is how does the velocity of sound depends on its frequency. So there is a formula for velocity, and frequency is one of the term in that formula. So they both are related, and uh, we are going to learn in detail how these two phenomena are, or these two parameters are रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब कि साउंड की जो स्पीड है यहाँ पे, वेलोसिटी यानी कि स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि साउंड की जो स्पीड है वो उसके फ्रीक्वेंसी पे कैसे किस तरह से डिपेंड करती है. नाउ फ्रीक्वेंसी इज द इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू शुड नो. ओके, सो every one of you just let me know that do you have idea about the concept of frequency. What is frequency? जिसको आइडिया है वो चैट बॉक्स में लिखिए. यस सर, वी नो. यस, और आई नो. ओके, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इन जनरल टर्म्स? द वेव्स ऑफ साउंड. ओके, I just need the general answer, not the perfect answer. Okay, it's a rate of waves, isn't it? Okay, let us see. Let others give the answers. Only 2 students have given the answer. I have asked all of you. सब लोगों ने बताना है. आपको फ्रीक्वेंसी पता है? धीरज, अनुज, द्विजेश. पता है कि नहीं? तो फिर लिखेगा कौन? अनुज. ओके, ठीक है. साउंड वेव्स. ओके, ठीक है. सो सी, फ्रीक्वेंसी इज नॉट द कंसेप्ट विच इज ओनली रिलेटेड टू साउंड. फ्रीक्वेंसी सिर्फ साउंड की ही होती है ऐसा कुछ नहीं है. फ्रीक्वेंसी इज अ वर्ड विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड दैट इज फ्रीक्वेंटली. बार बार कोई चीज अगर बार बार होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंटली हो रही है. बराबर. अगर मान लीजिए कि अभी गांव में लाइट जाती है, दिन में 2-3 बार लाइट जाती है, तो व्हाट वी से इन मराठी की लाइट खूप म्हणजे बरेचदा जात आहे, वारंवार जात आहे. बरोबर. आणि हिंदी हिंदी में हम कहते हैं कि लाइट बार बार जा रही है. सो व्हाट वी कैन से इन इंग्लिश, फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंटली इज द वर्ड. मतलब कि अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, सो दैट पर्टिकुलर मेजर, और उसे अगर हम मेजर करना चाहें तो दैट इज फ्रीक्वेंसी. अभी कैसे, देखो, इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम related to the direction of propagation of the sound wave. Now oscillation, new words, oscillation, propagation. Okay, so oscillation यानी कि क्या? Let us suppose if if waves are originating from somewhere. Okay, let us suppose this is a loudspeaker, and loudspeaker में से क्या होता है? साउंड की वेव्स आती है. बराबर. एंड वो हमें सुनाई देती है. सो ये जो वेव्स जनरेट हो रही है वहां पे, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ वेव्स और साउंड
इज नथिंग बट द ऑसिलेटिंग और या फिर ऑसिलेशन, मतलब कि वो जो लाउड स्पीकर है दैट इज नथिंग बट ऑसिलेटिंग, it is acting as a oscillator, okay, that is creating generating waves, okay, so that is means by oscillation. Now what is means by propagation? Propagation means transfer, sending, okay. Abhi let us suppose I want to talk to you, or basically I'm talking to you over the internet, okay. So what I'm doing is I am speaking here, okay, that my mic is capturing the audio, my mic is capturing the audio, it is converting into some data, and it is being sent over the internet, and it reaches to you, and your speaker decodes the data and you listen my sound. समझ रहे हो, मतलब कि मैं जो बोल रहा हूं, मतलब मैं यहाँ से प्रोपोगेट कर रहा हूं, मेरा जो स्पीच है या फिर जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, आई एम प्रोपोगेटिंग टू यू, ओके, एंड यू आर बीइंग द receiver, you are being the at receiver's end, okay. So propagation means basically transferring, okay, or the direction in which the data is being transferred, okay. So that is the propagation and oscillation, okay. Now sound is a form of energy which creates the sensation of hearing in our ears, okay. So this energy is in the form of waves. A medium is necessary for the propagation of sound waves. Sound waves give rise to chain of compression, place of higher density, and rarefaction, that is place of lower density in the medium. So sound क्या है? Sound is a form of energy, very important definition, which creates the sensation of hearing in our eyes. Sorry, eyes नहीं, ears. सो ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ये एनर्जी होती है वेव्स के फॉर्म में. नाउ वेव्स यानी कि क्या? जब आप पानी में पत्थर मारते हो तो क्या होता है? लेट अस सपोज दिस इज अ पॉन्ड, ओके, दिस इज वेरी स्मॉल पॉन्ड एक्चुअली, एंड इफ यू पुट द स्टोन हियर, ओके, यहाँ पे अगर आपने पत्थर फेंका तो क्या होगा कि इस तरह से वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे सभी तरफ उस पत्थर की, ओके. मतलब वो वेव जाती है. या फिर आपने कभी समंदर के किनारे पे जो वेव्स आती है वो देखी होंगी. सो वेव्स इज बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि इस तरह का कुछ एक एक एनर्जी होती है. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, ओके. एक्चुअल में वेव ऐसी नहीं होती है. So this is actually the representation of wave. Now how this representation came from, or where did this representation came from, that we will also see, okay. Now sound waves give rise to a chain of compression, place of higher density and rarefaction. So जहां पे higher density है, देखिए यहाँ पे इन particles की higher density, that is a compression. यहाँ पे lower density, that is rarefaction, okay. So these two terms are there again, compression and rarefaction. The particles of the medium oscillate about their central or mean positions in the direction parallel to the propagation of the waves. Such waves are called longitudinal waves, okay. Longitudinal waves. अभी longitudinal waves किन्हें कहा जाता है? तो एक सिंपल डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है. The particles of the medium oscillate about their central mean positions. तो इसकी जरूरत नहीं है longitudinal waves के लिए. See, the direction of propagation, parallel to the propagation of the wave. मतलब let us suppose, ओके, अगर ये जो मान लीजिए कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, मतलब कि यहां से हम साउंड इमिट कर रहे हैं इस डायरेक्शन की ओर, तो उन वेव्स भी अगर मतलब इसी तरीके से ट्रैवल कर रही है, दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, देन सच वेव्स आर कॉल्ड longitudinal waves. Such waves are called longitudinal waves. On the other hand, the waves created by dropping a stone is in still water. The particles of the water oscillate up and down. The oscillations are perpendicular to the direction of propagation of the wave. Such waves are called transverse wave. So agar particles are moving in direction parallel to the direction of propagation, then these are longitudinal waves. And if the oscillations are perpendicular to the direction of propagation of the wave,
such waves are called transverse wave. यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है. ओके, सो परपेंडिकुलर का एग्जांपल कौन सा है ट्रांसवर्स वेव्स का? ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल है वेव्स फॉर्म्ड इन द वाटर. ओके, तो वाटर में वेव्स जो फॉर्म होती है वो अगर आपने देखा होगा कि वेव्स तो इस डायरेक्शन में जा रही है. लेट अस सपोज यहाँ पे कोई स्टोन गिरा है. ओके, लेकिन वो ऑसिलेट किस तरह से होंगे? देखिए, पहले पानी ऐसा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, लाइक दिस. ओके, सो डायरेक्शन ये है, लेकिन इनका ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में है? इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. देखिए, अभी ऊपर गया ये, फिर से नीचे आ रहा है. दैट मीन्स इट इज ऑलवेज इन perpendicular direction to the propagation. So that's why these waves are called transverse waves. तो sound waves कौन सी waves होंगी? Sound waves are longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves, whereas the waves formed in the water are called transverse waves. Okay, now यहाँ पे हमें transverse waves के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है. We just have to focus on longitudinal waves. तो देखिए, यहाँ पे एक स्पीकर साउंड जनरेट कर रहा है या फिर ऑसिलेट कर रहा है. ओके, नाउ साउंड यानी क्या? साउंड यानी कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हुए ट्रैवल करके आते हैं मीडियम से, एंड दे स्ट्राइक इन आवर ईयर्स एंड we get a sensation of hearing. Okay, they are nothing but the particles. So इस इमेज में आप देख रहे हो कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो सेम नहीं है, मतलब हर जगह पे सेम नहीं है. यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे फिर से ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे फिर से ज्यादा. सो जो साउंड के जो पार्टिकल्स है, साउंड वेव्स के जो पार्टिकल्स है, वो हमेशा इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वेव्स. यानी कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है. सो दिस इज रेयरफैक्शन, दिस इज कॉम्प्रेशन. सो इसी को अगर हमें, दिस इज डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, तो यहाँ पे कन्वर्ट किया है चेंज इन प्रेशर में. सो ये बी फिगर अगर आप देखोगे, ओके, लेट अस सी, अ साउंड वेव कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ at any moment during the propagation of sound wave. We would find alternate bands of compression and rarefaction of the medium, that is bands of greater and lesser density. So the density is greater here, lesser here, again greater here, lesser here, again greater here, like this. Okay, now figure 12.1a shows the changes in the density, while figure B shows the changes in the pressure. तो अगर आप देखोगे, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे प्रेशर का जो ग्राफ है वो भी हमें एकदम व्हाट वी कैन से गाढ़ा दिखाई देता है या फिर डेंस दिखाई देता है. ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेंसिटी कम है तो प्रेशर का ग्राफ भी कैसा है? थोड़ा सा व्हाट वी कैन से विरळ, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो. ओके, सो दैट काइंड ऑफ ग्राफ इज हियर ऑफ चेंज इन प्रेशर. सो ग्राफ 1 क्या दिखाता है? ग्राफ 1 दिखाता है चेंज इन डेंसिटी. दिस ग्राफ इज ऑफ डेंसिटी, दिस इज ऑफ प्रेशर, एंड दिस इज density or pressure, that is representation. The changes in density or pressure are shown in the form of graph in figure C. तो फिगर सी को समझना बहुत नेसेसरी है. अगर फिगर सी को समझ लिया तो इन दो फिगर की हमें जरूरत आगे नहीं पड़ने वाली है. सो फिगर सी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ एज यू कैन सी, these two are nothing but the axis. Okay, see, this is a x axis, I name it as x axis, and that is a y axis, and this is a first quadrant, this is a first quadrant. Again यहाँ पे second quadrant रहेगा. Okay, now this is a third quadrant and this is a fourth quadrant. Okay, सो ये क्वाड्रेंट हुए. हमारे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं. सो ये समझ लीजिए कि हम अभी ऑपरेट किस क्वाड्रेंट में कर रहे हैं? वी आर ऑपरेटिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इस वेव को समझने के लिए देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं. नाउ इस एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज कैसे रहती है? पॉजिटिव और नेगेटिव. दे आर ऑलवेज पॉजिटिव हियर. ओके, इन ऑन दिस एक्सिस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी. नाउ इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में y की वैल्यू कैसी रहती है? पॉजिटिव और नेगेटिव. बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
Why in this direction? Can you people tell? समझ में आ रहा है? y की जो वैल्यूज रहेगी वो इस डायरेक्शन में कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी? पॉजिटिव रहनी चाहिए। वेरी गुड जय। ओके, इट शुड बी पॉजिटिव। y की वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। बाकी लोग क्या कर रहे हो? एंड इन दिस डायरेक्शन, अभी इस डायरेक्शन में बताओ, इस डायरेक्शन में y की वैल्यूज नेगेटिव रहेगी। ओके, तो देखिए मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को जूम करता हूं। सी, यहां पे लेट अस सपोज y की वैल्यू है 1, यहां पे y की वैल्यू है 2। ओके, नाउ यहां पे कितनी रहेगी फिर? -1 रहेगी, और यहां पे -2 रहेगी। ठीक है, -2 रहेगी। वेरी गुड। सो देखिए मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूं। ओके, सो दिस ग्राफ, दिस पर्टिकुलर थर्ड ग्राफ इज शोइंग दीज टू ग्राफ्स। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर ज्यादा है, बराबर, प्रेशर ज्यादा है, डेंसिटी भी यहाँ पे ज्यादा है। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू जो दिखाई गई है ग्राफ में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ ग्राफ हियर? हाउ मच? देखिए ग्राफ देखिए और मुझे बताइए यहाँ पे वैल्यू कितनी है? जहां पे प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है, उसके ठीक नीचे यहाँ पे वैल्यू कितनी है? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ इन द 2? इट इज 2 ना? सी, डोंट यू सी? ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर कैसा है? प्रेशर लो है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी? -2, इज इट? सो इसी इसी चेंज इन प्रेशर वाले ग्राफ को हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया इन दिस फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर आप बाकी के भी ग्राफ को रिलेट करके देखोगे तो आपको वही रिजल्ट दिखाई देगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ग्राफ की वैल्यू हाई है। प्रेशर कम है, ग्राफ की वैल्यू भी मिनिमम है। ओके, सो दिस इज हाउ द ग्राफ इज शोन। अभी इस ग्राफ को ड्रॉ करने की जरूरत क्यों पड़ी? Why we had to draw the graph? Because analysis of waves is it becomes simpler with the help of this kind of graphs. इस ग्राफ की मदद से हमारा जो कैलकुलेशन होता है या फिर एनालिसिस होता है वेव्स का, वो अच्छे से हो पाता है। इसलिए इन सब चीजों को, चेंज इन डेंसिटी हो या फिर चेंज इन प्रेशर हो, इनको हमें इस तरह से कन्वर्ट किया जाना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड नथिंग बट द वेव। दिस इज पर्टिकुलरली द वेव। ओके, दैट इज, टू बी प्रिसाइज, दिस इज अ कोसाइन वेव। ओके, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ओके, सो उसमें से जो कोसाइन है या फिर कॉस है, दैट इज दिस वेव, कॉस वेव। ओके, कोसाइन वेव। तो इस वेव्स में देखिए कुछ पैरामीटर्स हमको दिख रहे हैं, दैट इज ए दिख रहा है यहाँ पे, लैम्डा दिख रहा है, लैम्डा दिख रहा है यहाँ पे, एंड एक एरो दिखाया है, एवरेज डेंसिटी और प्रेशर भी यहाँ पे कुछ तो दिखा रहे हैं हमें। ओके, सो वी विल लर्न अबाउट दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट पैराग्राफ में भी। सी, the wavelength of a sound waves is indicated by Greek letter lambda. Okay, so this particular letter is called lambda. Okay, so this is a lambda, and it is the notation or it denotes the wavelength. Okay, now you can write down in your notebook, wavelength of sound is indicated by Greek letter lambda, and try practicing this symbol. Okay, so wavelength lambda मैं जब कहूंगा तो मैं wavelength की बात कर रहा हूं। Now what exactly is wavelength? What is wavelength? So यहाँ पे हमें बताया है कि इस टॉप पॉइंट से लेके इस टॉप पॉइंट तक जो एक वेव है, दिस दिस इज अ वेवलेंथ। ओके, दिस इज अ वेवलेंथ। ओके, वेरी गुड।
अगेन आई कैन से जहां से वेव शुरू हो रही है, लेट अस से यहां से, तो ये जो पोर्शन रहेगा जहां पे खत्म होगी, दैट इज अगेन वेवलेंथ. ओके, सिमिलरली फॉर नेगेटिव पोर्शन ऑल्सो, फ्रॉम दिस या इस पॉइंट से लेके अगर मैं यहां तक की बात करता हूं, तो दिस इज अगेन अ वेवलेंथ. वेवलेंथ यानी कि क्या, कि एक वेव की लेंथ कितनी है. लेंथ लेंथ यानी कि हमारी जो हम मेजर करते हैं ना, दैट इज लेंथ. तो कितनी है उस वेव की, तो आप कहां से कहीं से भी उसे मेजर कर सकते हैं. ओके, सो आई होप वेवलेंथ इज or your concept of wavelength is clear. Now while its frequency is indicated by nu, so this particular letter is nu, that is Greek letter nu. Okay, so इसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से. ओके, सो दिस इज अ nu. तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी. नो, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी मींस सी, दिस इज वन वेव, दिस इज वन वेव. ओके, यहाँ पे एक वेव हुई, उसके बाद में मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे दूसरी वेव, दिस इज अ सेकेंड वेव. These two waves are complete. Let us suppose if these two waves are passing in 1 second. Okay, so ये जो duration है that is 1 second. So frequency क्या कही जाएगी, frequency कही जाएगी 2 हर्ट्स. मतलब 1 सेकेंड में जितने कंप्लीट वेव्स पास होते हैं, उन वेव्स की जो काउंट है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ओके, 1 सेकेंड में पास होने वाले नंबर ऑफ वेव्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे अगर 1 सेकेंड में 2 वेव्स पास हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 2 हर्ट्स रहेगी. एंड इफ वेव्स पासिंग in 1 second are 10, then the frequency will be 10 hertz. Okay, so this is the concept of frequency and that is the wavelength. Okay, wavelength और frequency हमने देख लिया. Now the amplitude, see, which is the maximum value of pressure or density is indicated by A. So amplitude यानी कि this जो top value है ये वाली, so ये जो A दिखा रहा है ना, ये एक्चुअल में ये टॉप वैल्यू दिखा रहा है. दिस इज अगेन एम्पलीट्यूड, दिस इज अगेन एम्पलीट्यूड. मतलब वेव की जो टॉप वैल्यू रहेगी, सबसे ज्यादा वैल्यू, उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे. एंड विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी इज इंडिकेटेड बाय ए. तो यहाँ पे अगर आप टॉप वैल्यू देखोगे, एम्पलीट्यूड देखोगे, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा है, मैक्सिमम है. डेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम है. ओके, सो एम्पलीट्यूड यानी कि क्या, द रीजन वेयर pressure or density is maximum and it is indicated by A. So these are the three terms. First one is lambda, that is frequency. Second one nu, that is lambda is wavelength, nu is frequency, and amplitude is denoted by A. The time taken for one oscillation or of pressure or density at a point in the medium is called time period and is indicated by T. तो देखिए, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ओके, लेट अस सपोज 1 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 सेकेंड. ओके, सो 1 सेकेंड में मैं अगर आपको बोलता हूं कि यहां से 8 वेव्स पास हुए, कितने वेव्स पास हुए, 8 वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 8 हर्ट्स. ओके, 8 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी रहेगी 1 सेकेंड में अगर 8 वेव्स पास होते हैं तो. नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड, 1 सेकेंड इज द टाइम पीरियड, इज इट, 1 सेकेंड टाइम पीरियड है क्या, नहीं है. 1 सेकेंड इज नॉट द टाइम पीरियड. ओके, इट इज जस्ट द रेफरेंस फॉर फ्रीक्वेंसी. 1 सेकेंड इज नॉट टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड यानी कि क्या, 1 सेकेंड में तो 8 वेव्स पास हो गए. मैं यहाँ पे 8 की जगह पे मैं 6 वेव्स लिख देता हूं. ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस. 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हुई, 6 वेव्स पास हुई, या फिर इसे 10 ले लीजिए. ओके, 10 वेव्स. सो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10 हर्ट्स. लेकिन अभी मुझे बताइए, एक वेव को पास होने के लिए कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, एक वेव को पास होने के लिए लगा 1/10 ऑफ सेकेंड. बराबर, 1/10 ऑफ सेकेंड. यस और नो, yes or no, are you understanding this time period?
यस गुड, सो गिव द रिस्पॉन्स लाइक दिस. सो एक वेव का टाइम पीरियड कितना हुआ, 1 सेकेंड. सो एज यू कैन सी एफ की वैल्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 10 है. और टाइम पीरियड क्या मिला हमें, 1/10, दैट इज 1/f. 1/f. सो टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, what is relation between time period and frequency? No, that is c. This is frequency is equals to 1 by t. Write down this. T is the time period. Frequency is equals to 1 by t, or t is equals to 1 by nu. Okay. So this is the relation between frequency and time. You may need to calculate frequency or time in the examples. Now, the value of frequency determines pitch high or low of the sound, while the value of amplitude determines the strength or the loudness. Now, first question is, how are the frequencies of notes sare gamma padhanisa are related to each other? So sare gamma padhanisa, these are musical notes or octaves, we call it as, okay, सप्तसुर ज्याला की म्हणता येईल. सो इनमें क्या रिलेशन है, सा रे गा मा पा धा नि सा में क्या रिलेशन है? सो जहां तक मुझे पता है तो इनमें जो रिलेशन है, इनका जो व्हाट वी कैन से फ्रीक्वेंसी है, वो हर एक लेटर के लिए बढ़ता जाता है. सा के लिए थोड़ा सा कम है, रे के लिए ज्यादा है, गा के लिए फिर से ज्यादा है, म के लिए उससे ज्यादा, प के लिए उससे ज्यादा, धा के लिए उससे ज्यादा, नी के लिए उससे भी ज्यादा. एंड जो लास्ट में एक सा आता है, सारे गामा पाधा नी सा, सो जो लास्ट वाला जो सा है, उसकी फ्रीक्वेंसी विल बी ट्वाइस ऑफ दिस फर्स्ट सा. इस सा की फ्रीक्वेंसी अगर 2 हर्ट्ज है, तो जो लास्ट वाला सा रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 4 हर्ट्ज. ओके, so this is the relation that I know. You can research about it. Now, what is the main difference between the frequencies of the voice of a man and that of a woman? Okay, so man का जो voice है और women का जो voice है, उसमें क्या difference है? Okay, so my first question to all of you is, do you think is there any difference in the frequencies? Yes or no? Do you think there is? See, women का जो आवाज है और जो मैन का आवाज है वो सेम रहता है. इज इट द केस? इट इज ऑब्वियसली नॉट द केस. ओके, वुमेन का वॉइस अलग रहता है, मैन का वॉइस थोड़ा सा अलग आता है. बराबर? एम आई रॉन्ग? बताइए, जल्दी जल्दी बताना है. यस यस, मैत्रेय यू आर सेइंग नो, बट आई फील साउंड डिफरेंट आता है. नाउ देखिए, मैन का जो साउंड रहता है, ओके आई एम नॉट रॉन्ग, ओके गुड. सो मैन का जो साउंड रहता है वो थोड़ा सा लाउड रहता है. बराबर? थोड़ा सा लाउड रहता है. और वुमेन का जो साउंड रहता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है. बराबर? नाउ टेल मी, व्हाट कैन बी द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी? विमेन का जो वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, या फिर मैन का जो वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है? कैन यू टेल मी हुज फ्रीक्वेंसी इज व्हाट वी कैन से ग्रेटर? मेन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर रहती है, मेन्स वॉइस की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर रहती है. ओके ओके, everybody is saying men's voice frequency is greater, but let me tell you one interesting fact. Okay, see, the value of frequency determines the pitch and not the loudness or the strength. हम बात किसकी कर रहे थे कि मेन का जो साउंड है वो लाउड आता है, उसमें स्ट्रेंथ रहती है. सो फ्रीक्वेंसी का उससे कुछ लेना देना नहीं है, एम्पलीट्यूड का उससे लेना देना है. सो फ्रीक्वेंसी का लेना देना किससे है? पिच से, हाई और लो. सो नोट डाउन दिस. For women, frequency is high. Okay, but amplitude is low. Okay, and for men, frequency is low
frequency is low but amplitude is high. Okay, so this is the differences, these are the differences in man's voice and woman's voice. Did you get this? वुमेन के वॉइस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है लेकिन एम्पलीट्यूड कम रहता है, यानी कि उनके बोलने का जो पिच रहता है वो पिच ज्यादा रहता है, हाई रहता है, एंड उनका जो लाउडनेस है वो कम रहता है. ऑन द अदर हैंड मेंस का जो वॉइस है उसका स्ट्रेंथ या फिर लाउडनेस ज्यादा रहता है और उसका पिच कम रहता है. ओके, सो दिस इज द difference. I hope you have noted this. Okay, now velocity of sound. So यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है. ये 4 जो स्टेप्स है मैं इतने ज्यादा पढ़ता नहीं बैठूंगा, मैंने इसे पहले पढ़ लिया है तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या बोला गया है कि आपको और आपके फ्रेंड को एक एक्सपेरिमेंट करना है. उसमें आपका फ्रेंड एक जो आयरन पाइप रहेगा उसे बजाएगा. ओके, इट विल रिंग द पाइप या फिर व्हाट वी कैन से, वो उस पाइप को किसी आयरन के पीस से वो उसे पीटेगा तो हमें क्या होगा, वो साउंड सुनाई देगा. तो इनका कहना है कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, you have to stand away from that pipe and you have to listen to that sound, and after that you have to come closer to that pipe and again you have to listen that hear to that sound. Okay, so आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि आपको किस तरीके से साउंड जल्दी सुनाई दिया. जब आप उस आयरन पाइप को कान लगाते हो तब, या फिर जब आप दूर खड़े रह के उस वॉइस को सुन रहे हो. ओके, सो दैट इज द एक्सपेरिमेंट. सो इट्स रिजल्ट्स आर क्वाइट ऑब्वियस कि जब हम दूर खड़े रहेंगे तो हमें उस साउंड जो है वो थोड़ा सा लेट सुनाई देगा, बट इफ वी put our ears on that pipe, so we'll be able to listen to that particular sound much earlier than the previous one. बराबर, मतलब कि जब हम कान लगाएंगे उस पाइप को तो ऑब्वियसली हमें साउंड जो है वो जल्दी सुनाई देगा. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव इन यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड. सो वेलोसिटी ऑफ द साउंड का पहला हमारा क्वेश्चन था. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट. नाउ पॉइंट यानी कि क्या, देखिए ये वेव है, ये वेव में कोई भी आप एक पॉइंट उठा लीजिए, लेट अस सपोज दिस पॉइंट. सो इस पॉइंट ने डिस्टेंस कवर किया है, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना. सी इसमें से कोई भी एक पार्टिकल लीजिए, ये पार्टिकल जो है वो मूव हो रहे हैं. ओके, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ लाइक दिस, दे आर मूविंग. सो दिस पार्टिकल विल कीप चेंजिंग इट्स position. So it is moving with certain velocity or the speed. So what exactly is the speed of that motion of the particle? That is velocity is equals to distance by time. That is a general formula. Velocity is equals to distance by time. That is a general formula. Any point on the sound wave covers a distance equal to lambda wavelength in time t time period. Thus the velocity of sound is given by wavelength by time period. Okay, so देखिए मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है. टाइम पीरियड इज द टाइम taken by a single wave to complete its cycle. Okay, that is a time period t. Now हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए. Now I am taking this as a point. Okay, so this particular point is moving and it is going here. Okay, like this यहाँ पे. तो इसने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसने एक्चुअल में उतना ही डिस्टेंस कवर किया है जितनी की इस वेव की वेवलेंथ है. बराबर, इस वेव की जितनी वेवलेंथ है उतना उसने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने डिस्टेंस की जगह पे वेवलेंथ लिख दिया. नाउ टाइम कितना लिया उसने, तो टाइम इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ले लिया उसने. जितना टाइम पीरियड था उस वेव का उतने ही टाइम में उसने उतना डिस्टेंस कवर किया है. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय टी. सी दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, lambda by t. Now we know that, see, t is equals to nu, that is frequency. 1 by t is equals to
नो, मतलब कि 1/टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो व्हाट वी कैन डू, 1/t की जगह पे हम यहाँ पे नू रख देंगे, तो हमें एक और रिलेशन मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नू मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा, दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ओके, सो सब लोगों ने चैट बॉक्स में फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। सिंबल्स आपको नहीं मिलेंगे, तो यू कैन जस्ट सिंपली टाइप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू का सिंबल मिलता है, v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय wavelength, that is lambda. Okay, this is the first formula. Now second formula आप लोगों ने क्या लिखना है, सेकेंड फॉर्मूला लिख लीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अभी तक किसी का भी फॉर्मूला मुझे चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा है। ओके, so write down in your notebook as well as in the chat box. वेरी गुड द्विजेश, मैं आप लोगों को लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपको ज्यादा ध्यान में रहता है। वेरी गुड मैत्रेया, he has written both the formulas. See, धीरज, first formula is velocity is equals to frequency multiplied by wavelength, यहां पे लिखा भी है फॉर्मूला। ओके, see, v for velocity is equals to frequency, that is nu multiplied by wavelength. Velocity is equals to frequency multiplied by wavelength. And the second formula is velocity is equals to wavelength divided by time period. Very good, जिन लोगों ने लिखा, very good. What is problem with you, ऋषि, अविग्ना, अनुज? आप लोगों के एग्जाम में ये फॉर्मूलाज नहीं आएंगे क्या? चलो, let's move further. So see, velocity of sound is equals to wavelength multiplied by frequency. Now, in any medium at fixed physical conditions, the velocity of sound of different frequencies is very nearly the same. The velocity is the highest in the solids and least in the gases. It increases with an increase in the temperature of the medium. See, it increases with increase in the temperature of the medium. तो अलग अलग मीडियम में साउंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी रहती है, हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। नो, वेलोसिटी ऑफ साउंड in various mediums at 25 डिग्री सेल्सियस। सो एज यू कैन सी, जो सॉलिड्स हैं उनमें जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, दैट इज if we see for aluminum, the speed or the velocity of time sound is 5420 meters per second. Don't forget about the unit, that is meter per second. And if we see in the liquids, that is, see, 1531. And in gases, that is minimum is it is in sulfur dioxide, that is 213 meters per second. तो इस टेबल का जो कंक्लूजन है वो यही है कि सॉलिड्स में साउंड जो है वो फास्टर ट्रेवल करता है या फिर उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहती है, एंड in gaseous medium or in gases the velocity of sound is very low or low, and in liquids sound travels with the medium velocity. Okay, not too fast, not too slow. Now, the Italian physicist Borelli and Vivini in 1660s first calculated the speed of sound. They measured the time between seeing a flash of a gun and hearing its sound from a long distance. Their value of 350 meter per second
is very close to the value of 346 मीटर पर सेकेंड which is accepted today. Okay, so देखिए कितने साल पहले, लगभग 340 सॉरी 360 साल पहले, 360 साल पहले दो साइंटिस्ट थे, बोरेली एंड वाइवाइनी. ओके, सो इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उन्होंने तब साउंड की जो स्पीड है वो मेजर की थी एंड उनका जो वैल्यू आया था वो था 350 मीटर पर सेकेंड. एंड अभी जो साइंटिफिकली प्रूवन प्रूवन है, मतलब कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद में जो ग्लोबली एक्सेप्टेड वैल्यू है आज की, दैट इज 346. मतलब देखिए उनका मेजरमेंट कितना एक्यूरेट था, किस समय में, उस समय में जबकि उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने वो किस तरह से मेजर किया था साउंड, यहाँ पे दिया भी है कि दे फायर्ड अ गन शॉट. ओके, उन्होंने क्या किया, एक गोली चलाई गन से. सो गन गन से गोली चलने के बाद में जो उसका नोजल रहता है गन का, वहां पे फ्लैश होता है, बराबर, थोड़ा सा आग आग टाइप दिखता है ना, सो दैट इज फ्लैश. एंड उन्होंने देखा कि जब फ्लैश दिख रहा है, मतलब कि जब फ्लैश दिख रहा है तो गोली चल गई है, एंड द साउंड हैज जनरेटेड देयर एंड इट इज कमिंग टू देम, एंड दिस इज हाउ दे हैव कैलकुलेटेड द साउंड की फ्लैश दिखने के बाद में, उस गन शॉट का फ्लैश दिखने के बाद में कितने बाद हमें साउंड सुनाई दिया. ओके, सो ऑन दिस, on the basis of this experiment they calculated the value of the sound back then. Okay, so this is the very, what we can say, interesting experiment they have performed. Okay, now velocity of sound in gaseous medium. So did we miss anything? No, we didn't. Okay, so the velocity of sound in gaseous medium depends on the physical conditions, that is temperature, density of the gas and its molecular weight. Okay, so there are three factors इन द गैसियस मीडियम, या फिर एयर में जब साउंड ट्रैवल करता है तो तीन चीजें उसे अफेक्ट करती है. वो तीन चीजें कौन सी है, देखिए, फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर, सेकेंड थिंग इज डेंसिटी, एंड थर्ड थिंग इज मॉलिक्यूलर वेट. ओके, और या फिर व्हाट वी कैन से मॉलिक्यूलर मास, atomic mass. Now first thing, that is temperature. The velocity of sound is directly proportional to the square root of the temperature of the medium. This means that increasing the temperature 4 times doubles the velocity. Okay, so v is directly proportional to root of t. You must write this and you must understand this principle as well. जब हम टेम्परेचर, if we increase the temperature 4 times then the velocity will double. Okay, मतलब कि अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पे साउंड सेंड कर रहे हैं and it is traveling in a 100 meter per second velocity, let us suppose if I multiply this temperature by 4 times, that is 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे साउंड कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा, 200 meter per second. Okay, so this is the relation, that is v is in directly proportional to root of t. now density यानी कि कितना डेंस है वो मीडियम, जो गैसियस मीडियम हम बात कर रहे हैं. सो डेंस v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. मतलब कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो साउंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंड डेंसिटी अगर कम होगी तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी. ओके, सो वेलोसिटी किस तरह से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नो मॉलिक्यूलर वेट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, v is directly proportional to root of t, v is inversely proportional to root of rho, that is rho, इस सिंबल को rho ऐसे रीड किया जाता है. And again velocity is inversely proportional to molecular mass or weight. Now there is one thing to think about. The molecular weight of oxygen is 32 while that of hydrogen is 2. Prove that under the same physical conditions the velocity of sound in hydrogen is 4 times that in the oxygen.
सो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हम मोस्टली नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, नाउ इट इज ऑलमोस्ट 7:45. So let me just know that you have understood the concepts that I have told you today. So जो वेवलेंथ था, फ्रीक्वेंसी था, एम्पलीट्यूड था, उसके बाद में किस तरह से पार्टिकल्स मूव करते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ऑसिलेशन क्या होता है, ये सब चीजें आपको क्लियर है. ये अगर क्लियर है तो ही कुछ फायदा है आज के लेक्चर का, नहीं तो कुछ फायदा नहीं. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो याद हो सकते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट एक बार अगर आपके क्लियर हो गए तो आपको इसका फायदा अगले स्टैंडर्ड में या फिर 11th 12th में जरूर होगा. ओके, सो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. Still, if you have any kind of doubt, any small doubt, you can just put in the chat box. I'll respond to it if possible today, not if not in the next class. Okay, so if you don't have any doubt, just everyone put in the chat box that no doubt, and we will conclude the class. Okay, we will close the class if you don't have any doubt. No doubt to Dheeraj. Okay, Dvijesh. Okay, I need confirmation from everyone so that we can close the class for today. नो डाउट. देखिए, अभी नो डाउट कह रहे हो, जब रिवीजन की बारी आएगी तो आंसर्स अगर आप लोग नहीं दोगे तो फिर देख लेना. ओके, सो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए. होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, चलो ठीक है. सो बाय बाय देन. नाउ यू कैन लीव द मीटिंग. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. यस, बाय बाय. लीव द मीटिंग एवरीवन. जय अभिज्ञा. अभिज्ञा, मैत्रेय, लीव द मीटिंग. चलो.